Good morning, student. This is Sanjay Rahi. Already we have studied the pre-fertilization event. Today we will start with the fertilization and the post-fertilization events. So what is fertilization? Fertilization can be called as syngamy. Syngamy means fusion of the gametes. Male gamete and female gamete both fuse to form the zygote. As we know, gametes are haploid in nature. Definitely, when fertilization will occur, zygote will be having the diploid nature, and this is the fate of the zygote, that it can develop into a whole embryo. Dear student, can without fertilization zygote formation can occur? Yes, yes, you are right. And this process is called as the parthenogenesis. However, this parthenogenesis is a rare phenomenon. It is not a common phenomenon. The development of the new individual without fertilization. आपने सुना होगा हनी बी की कॉलोनी के अंदर जो मेल मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड ए ड्रोन. ड्रोन के बारे में आपने सुना होगा. तो ड्रोन जो है एक्चुअली ड्रोन आर दी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, माने बिना फर्टिलाइजेशन के वो पैदा होता है. सिमिलरली सम ऑफ द लिजर्ड्स, when the on the basis of temperature the sex of the lizard is determined, as well as haploid egg can convert it into the diploid one. ठीक है. So seedless fruit are called as the parthenocarpic fruit. Similarly, because seeds are the product of the fertilization, so if in certain case, like in case of papaya, what happened without fertilization, the formation of fruit can be occur. The ovary can ripen to form a fruit, but that fruit lack the seeds. उनमें seeds जो होते हैं वो नहीं रहते. Students, this fertilization can be divided into external fertilization or the internal fertilization. आपने देखा होगा इफ़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल अकर आउटसाइड द बॉडी. अगर हम फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द फिशेस, मोस्ट ऑफ द amphibian, actually they lay egg in the water, as well as they produce gametes, male gametes in the water, and fertilization occur in case of the water. So certain aquatic organism like algae, fishes, amphibians, but there are certain disadvantages of external fertilization too. Why? Because when the eggs are producing in the open environments, sperm is producing in the open environment, there may be a chances of degradation of them. Moreover, predators can eat these eggs, or they destroy the egg and the offspring. So the survivability rate of offspring to the adult is very much low. Similarly, internal fertilization. Internal fertilization की बात अगर हम करते हैं, if the fertilization occur inside the body of the plant, or in case of the animal, then it is called as the internal fertilization, and it is a feature of the plants as well as the most of the animal including mammals. See, so अगर हम सर्वाइबिलिटी रेट की बात करें तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है दैट इज मोर सेफर. Zygote, the fusion of the haploid male and female gamete result in the formation of the diploid zygote. Already I have told you, because sperms and ovum, they are haploid in nature, so when the fusion of both occur, the chromosome number become double and we get the diploid organisms. In case of fungus and algae, the zygote form as a thick cell wall, and it helps to resist the unfavorable condition. You know that जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी की बात करें या फंगस की बात करें, डेफिनेटली ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, थिक सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द हार्श एनवायरनमेंट. डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ the haploid and the diploid phase, actually a topic comes that alternation of generations. अभी तक जैसे हमने बात की गैमेटोजेनेसिस की बात करें, या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की बात करें, या जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, जाइगोट फिर से एक अडल्ट वन ऑर्गेनिज्म जो वो तैयार कर देता है. तो अगर लाइफ साइकिल की बात करें, तो इन केस ऑफ लाइफ साइकिल व्हाट हैपन, वन फेज ऑफ द लाइफ इज फॉलोड बाय द अदर फेज ऑफ द लाइफ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये जो गैमीट्स है, गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट्स बनते हैं, दे आर
haploid in nature, and the main body, or when after fertilizer zygote will form, zygote will give rise to young one. तो young one जो बनेंगे वो mainly क्या होता है, diploid in nature होता है. So haploid phase is always followed by the diploid phase. So on the base, this is called as, this phenomenon is called as the alternation of the generation. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, that vegetative phase is followed by the sexual phase, vegetative phase is followed by the sporophytic phase. This is also called as the alternation of the generation. तो sporophytic phase क्या होता है, that is diploid in nature. vegetative phase क्या होगा, जनरली आपका haploid in nature हमारे कई प्लांट्स के अंदर होता है. तो सिमिलरली we can categorize this life cycle into three main types. One is the haplontic life cycle. अगर आप देखिए यहाँ पे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो जनरली जो देखा जाता है वो एल्गी के अंदर देखा जाता है. जैसे हमारे हो गए वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एट्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें इनमें जो मेन जो प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफिटिक इन नेचर. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट ये जो आपका जो केस है यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है, जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइट एंड दैट इज हैप्लोइड इन नेचर. अब हैप्लोइड इन नेचर है तो दे विल थ्रू गैमेटोजेनेसिस. अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जनरली हमने बोला जब डिप्लॉइड बॉडी होगी तो गैमेटोजेनेसिस जो होगी दैट इज थ्रू द मियोसिस. बट यहाँ पे बॉडी ऑलरेडी क्या है, द बॉडी इज ऑलरेडी हैप्लोइड इन नेचर. सो थ्रू माइटोसिस इट विल प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमीट and after syngamy zygote will form. So dear student, this is a very small process. This is okay. This zygote remain for a very shorter period of time. Once zygote is formed, it is followed by the meiotic division and the spores are formed which are haploid in nature and again they germinate to the gametophyte. सी तो यहाँ पे जो मेन बॉडी की अगर बात करें, गैमेटोजेनेसिस की बात करें या स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स, गैमेटोफाइट और जो गैमेटोजेनेसिस में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो भी सेल्स है मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल है एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लोइड फेज. ठीक है, एंड दिस डिप्लॉइड फेज इज ओनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द ज़ाइगोट. तो यहाँ पे हैप्लोइड फेज जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. सो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर हैप्लॉइड फेज डोमिनेट्स ओवर द डिप्लॉइड फेज. सिमिलरली अगर हम बात करें इन द डिप्लॉन्टिक प्लांट की बात करें, अब डिप्लॉन्टिक प्लांट में कौन आ जाते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें वेयर मेन बॉडी इज डिप्लॉइड इन नेचर, द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड इन नेचर. तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, हायर प्लांट्स की बात अगर हम करें तो देयर मेन बॉडी इज डिप्लॉइड इन नेचर. अब अगर हम बात करें मेन बॉडी की बात करें, ये मेन बॉडी आ गया आपके यहाँ पे, देखिए प्लांट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज मेन बॉडी दैट इज द स्पोरोफाइट. नाउ अब अगर स्पोरोफाइट की बात करें, इस पे जो आपके सेक्स ऑर्गन लगेंगे दैट इज द एंथर की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये आपका डिप्लॉइड है. आपके पास जो पिस्टिल है ये आपके डिप्लॉइड है. अब इसके अंदर क्या है, अगर एंथर की बात करें देयर इज ए माइक्रोस्पोरेंजियम है, इधर क्या आपका मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये भी क्या है आपके डिप्लॉइड इन नेचर है. ये दोनों क्या है आपके डिप्लॉइड इन नेचर है. नाउ इन मियोसिस अकर बेसिकली इन दी सेल्स, इनमें मियोसिस होती है. तो हमारे पास क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड है, या एम्ब्रियो सैक बनता है जो कि हैप्लॉइड है. तो द हैप्लॉइड फेज इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय these gametophytic phase. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन व्हाट वी गेट, वी विल डिप्लॉइड फेज ज़ाइगोट. उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, ये भी डिप्लॉइड होगा. तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 या 5 स्टेजेस जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्लॉइड फेज एंड ओनली 2 स्टेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड फेज. तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला इसे डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. इसे हम डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं. The third category is the haplodiplontic phase. Haplodiplontic where haploid and diplontic phase both are nearby equal or nearby equal. अगर haploid और diploid phase दोनों जो है लगभग जो है बराबर फेज में लाइफ साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, then it is called as the haplodiplontic, like in case of bryophytes and pteridophytes. My dear student, once the formation of zygote occur, that zygote undergo a sort of development to form a embryo. The zygote undergo division and differentiation into the embryo. अब अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं कि जो एक ज़ाइगोट है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है एक एम्ब्रियो के अंदर, या डेवलपमेंट एम्ब्रियो की हो रही है. ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट कैन बी विविपेरस
or plant can be oviparous. So vivipary, you know that viviparous animals are those animal which lay their eggs, ठीक है, जो एग्स को पैदा करते हैं, एंड दैट एग अंडरगो एम्ब्रियोजेनेसिस इन द ओपन एनवायरनमेंट. आपको पता है कि इनक्यूबेशन हम करते हैं, हम लोग की जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एग ले एनवायरनमेंट में जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो एग्स को इंक्यूबेट करते हैं सो दैट द यंग वन हैचिज आउट, ठीक है. जबकि अगर हम विविपेरी की बात करें, विविपेरी में क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, जो डेवलपमेंट वो इनसाइड द बॉडी, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट एम्ब्रियो इज डेवलप इनसाइड द ह्यूमन बीइंग इन द फीमेल बॉडी, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज द विविपेरी. सो कुड यू टेल मी दैट ओविपेरी और विविपेरी आउट ऑफ द टू विच इज मोर सेफर? यस, दैट्स राइट, आप सही सोच रहे हैं, विविपेरी इज मोर सेफर. क्यों सेफर है? क्योंकि हियर द केयर एंड प्रोटेक्शन